Hello all of you. Now let's see another procedural chapter, audit. ये ऑडिट जो हम देखेंगे ये डिपार्टमेंटल ऑडिट. एक ऑडिट हमने पहले देखा है जो सीए को करना होता है. अगर एक एसएससी का टर्नओवर 2 करोड़ के ऊपर जाता है तो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना है, वो अलग हो गया. ये डिपार्टमेंटल ऑडिट. लेट्स सी. Audit under GST is the process of examination of records, returns and other documents maintained by taxable person. The purpose is to verify the correctness of the turnover declared, taxes paid, refund claimed and input tax credit availed, and to assess the compliances with the provisions of GST. Very simple points. तो दो सेक्शंस इसमें हम देखेंगे. Audit by tax authorities section 65 and special audit अगर जरूरत पड़ी तो कॉल किया जा सकता है, जो अगेन फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा. तो शुरू करते हैं सेक्शन 65 से. हु कैन कंडक्ट द ऑडिट अंडर सेक्शन 65 एंड अगेंस्ट हुम? तो इसमें लिखा है द कमिश्नर एंड द प्रॉपर ऑफिसर ऑथोराइज बाय कमिश्नर. कमिश्नर के पास पावर है या फिर ऑफिसर जो कमिश्नर अपॉइंट करेगा. Can conduct audit of the transactions of a registered person only. सिर्फ registered person का audit हो सकता है, unregistered का नहीं हो सकता. And the commissioner may issue a general order or specified order to such officer to conduct the audit. तो ठीक है. फिर टाइम पीरियड दिया है कि as per the assessment and audit rules, rule 101, the period of audit under subsection 1 of section 65 shall be the financial year or multiples thereof. यानी एक फाइनेंशियल ईयर का भी हो सकता है या 2, 3, 4 का भी हो सकता है. फ्रीक्वेंसी एंड मैनर फॉर कंडक्टिंग सच ऑडिट आर येट टू बी प्रिस्क्राइब. कितने टाइम में किस किस लोगों का ऑडिट होगा वो अभी प्रिस्क्राइब होने का है. इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट द सेड ऑर्डर ऑफ कमिश्नर मस्ट बी स्पेसिफिक टू द ऑडिटी एंड द टैक्स पीरियड सिलेक्टेड फॉर ऑडिट. ठीक है. Absence, error and deficiency in such order aborts any preparatory step taken by the audit officer and preparation to respond taken by the auditee. Aborts यानी खत्म कर देता है. Place of conducting the audit will be the place of business of the registered person or the office of tax authorities. या तो वो हमारे यहाँ के ऑडिट करेंगे या हमसे रिकॉर्ड्स बुलवाकर उनके ऑफिस में ऑडिट करेंगे. इंटीमेशन आपको आएगा एटलीस्ट 15 days in advance in accordance with the rules so and so in form ADT01, and completion will be within 3 months of the date of commencement of audit, which may be extended by the commissioner after recording the reasons for doing so and where required, and further period not exceeding 6 months. तो 6 महीने का extension दिया जा सकता है. Means it can be 3 plus 6 at the most. Then date of commencement of audit दिया है means the date on which the records and other documents called for by the tax authorities are made available. जिस दिन हम उनको सबमिट करेंगे उस दिन ऑडिट शुरू हो गया ऐसा माना जाएगा. Or the actual institution of audit at the place of business whichever is later. वो तो ठीक है, कुछ काम का नहीं है, इसको एक बार पढ़ के रख देने का है. कोऑपरेशन बाय द एसएससी सिंपल है, एसएससी ने कोऑपरेट करना है पूरे ऑडिट प्रोसीजर के अंदर. एंड पावर ऑफ द कमिश्नर व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट, इस पे एक आध शॉर्ट नोट 3 मार्क का है तो आए कि एज पर द जीएसटी रूल्स ऑन असेसमेंट ऑन ऑडिट the proper officer shall verify the documents on the basis of which the accounts are maintained and the periodical return statements are furnished. The officer, while conducting the audit, is authorized to verify the books, returns and statements, correctness of turnover, exemptions and deductions, rate of tax applicable in respect of supply of goods and or service, and input tax credit claimed, availed, unutilized and refund claimed. All simple points. And best practices to be adopted for GST audit among others could be, ये सब टेक्निकल मैटर्स है. ऑडिट वैसे ही बहुत बोरिंग टॉपिक है, आप सब जानते हैं. वही 100 मार्क के लिए पढ़ना पड़ता है, वही जान पे आता है. उसके अंदर जीएसटी का भी ऑडिट पढ़ना पड़े तो माय गुडनेस.
तो उसमें लिखा है कि फॉलोइंग थिंग्स कैन ऑल्सो बी वेरीफाइड. द स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट which has specific disclosures needs in regard to maintenance of record, stock and fixed assets. अगर उसमें ऐसे कोई क्वालिफिकेटरी रिमार्क्स है ऑडिटर के तो उसको और फर्दर इन्वेस्टिगेट यहाँ पे किया जा सकता है. देन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट रिपोर्ट एंड द इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट एंड इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनर डिजाइन फॉर जीएसटी कंप्लायंसेस. And the use of generalized audit software to aid the GST audit would ensure modern practice of risk-based audit are adopted. The reconciliation of the books of accounts or reports from the ERPs to the return is imperative. ERP जो पैकेज होता है उससे रिटर्न का reconciliation होना चाहिए. The review of the gross trial balance for detecting any income being set off with expenses. Review of purchase or expense to examine applicability of reverse charge, and the foreign exchange outgo reconciliation would also be necessary for identifying the liability of import of service, and quantitative reconciliation of stock transfer within the state of a supplies to job workers under exemption, वो चेक किया जाएगा. And ratio analysis could provide vital clues on areas of non-compliance. हाँ, बड़ी बड़ी बातें हैं सब, ये आपको जानते हैं, यू आर नाउ एक्सपर्ट्स. ये फेंकने की सब बातें रहती है, ये देखो वो देखो, फलाना करो ढिंका ना करो. Then on audit completion, the information is required to be provided to the registered person, including the findings during the audit. Registered person को information दी जाएगी, including findings कि क्या क्या मिला है तुम्हारे ऑडिट के अंदर, within 30 days of the conclusion of the audit. In ADT 02 फॉर्म ADT 02 रहेगा, उसमें इंफॉर्मेशन भेज देंगे. And in cases where the tax liability is identified during the audit or input tax credit wrongly availed or utilized by the auditee, तो या तो टैक्स लाइबिलिटी में गड़बड़ मिली है या ITC में गड़बड़ मिला है, तो फिर the procedure laid down under section 73 or 74 is to be followed. ये रिकवरी प्रोसीडिंग्स है जो बाद में पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस वो फॉलो करने का है. ये दिया है उसका ब्रीफ क्या होते हैं सेक्शंस. 73 इज रिकवरी ऑफ ड्यूटी विच इज शॉर्ट लेविड, शॉर्ट पेड, नॉट लेविड, नॉट पेड बाय नॉर्मल रीजंस, और 74 फ्रॉड की वजह से अगर है तो ये दो सेक्शंस अपन बाद में पढ़ने वाले हैं डिटेल में. और उसके आगे लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑडिट कैन नॉट कंक्लूड ऑटोमेटिकली रिजल्टिंग इन ए डिमांड. ऑडिट के बेसिस पे कोई डिमांड नहीं आएगा. ऑडिट तो सिर्फ रीजंस बताएगा, चीजों को खोज के निकालेगा कि कहां गड़बड़ है. जो प्रोसीजर है वो सेक्शन 73 या 74 में फॉलो करने का है, तभी जाके डिमांड नोटिस आएगा. तो वो एक 65 है और फिर 66 है स्पेशल ऑडिट. तो उसमें लिखा है कि एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, यानी असिस्टेंट कमिश्नर या उसके ऊपर वाले जो लोग हैं, कैन विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर डायरेक्ट सच टैक्सेबल पर्सन by a communication in writing to get his records including books of accounts examined and audited by a chartered accountant or a cost accountant as may be nominated by the commissioner. तो देखो आप सीए बनने के बाद क्या करने का कि खुद को एम्पैनल कराने का विद CBEC. तो फिर लोकल कमिश्नर जो है उसके पास आपका एम्पैनलमेंट होगा और वो आपको अपॉइंट करेगा फॉर गोइंग एंड ऑडिटिंग some assessee. Then circumstances under which special audit can be directed, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है. कौन से circumstances में स्पेशल ऑडिट कॉल हो सकता है? ये वैसे ही है जैसे इनकम टैक्स में हम पढ़ते हैं सेक्शन 142 है ना, 2A, तो वैसे ही ये है स्पेशल ऑडिट. इफ एट एनी स्टेज ऑफ स्क्रूटिनी, inquiry, investigation or any other proceeding before him. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कोई तो भी प्रोसीडिंग उसके सामने चल रहे हैं, ऑफिसर के सामने,
इट मे बी असेसमेंट प्रोसीडिंग, इंक्वायरी, स्क्रूटिनी, ये चल रहा है, और उस बीच में उसको लगता है कि कुछ तो भी गड़बड़ है और ऑडिट होना चाहिए, तो वो ऑडिट कॉल करेगा। कहने का मतलब कि अगर कोई स्क्रूटिनी, कोई इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई प्रोसीडिंग चालू नहीं है तो क्या वो ऑडिट कॉल करवा सकता है, स्पेशल ऑडिट? तो आंसर है नो, ही कैन नॉट। तो कोई ना कोई प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू होना जरूरी है, कोई ना कोई प्रोसीडिंग के बीच में अपने को होना जरूरी है, देन ओनली द ऑडिट कैन बी कॉल्ड फॉर। ये टेक्निकल पॉइंट्स है, इसको याद रखो। एनी स्टेज ऑफ स्क्रूटनी, any officer not below the rank of assistant commissioner having regard to nature, अब ये technical words हैं, underline करो, nature and complexity of the case and interest of revenue, is of the opinion, complexity of the case, उसको लग रहा है कि केस बहुत कॉम्प्लेक्स है, अकाउंट्स वगैरह ये वो सब बराबर मेंटेन नहीं है और कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस जरूर है, और इसकी वजह से इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, यानी टैक्स इवेजन होने के चांसेस है। इज ऑफ द ओपिनियन दैट द वैल्यू, अंडरलाइन वैल्यू, हैज नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर्ड और द क्रेडिट, अंडरलाइन क्रेडिट, तो वैल्यू या क्रेडिट दो चीज है मेन। सो वैल्यू हैज नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर्ड और द क्रेडिट अवेल्ड इज नॉट विद इन द नॉर्मल लिमिट्स, नॉर्मल लिमिट्स से बहुत ज्यादा क्रेडिट लेके रखा है तुमने। अभी नॉर्मल लिमिट्स कैसे पता चलेगी? फ्रॉम द इंडस्ट्री टू विच यू बिलोंग। जैसे आप स्टील मैन्युफैक्चरर हो तो बाकी इंडिया में भी बहुत सारे स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक उसका रेशियो निकाल के रखते हैं लोग। क्या करते हैं कि जैसे आपका आउटपुट टैक्स अगर एक महीने का 10 लाख जा रहा है, आउटवर्ड लायबिलिटी 10 लाख ऑन सप्लाईज, तो उसमें आप क्रेडिट से कितना सेट ऑफ करते हो और कैश में कितना पे करते हो, ये पूरे इंडस्ट्री का एक एवरेज निकलेगा ना। जैसे एक टाटा स्टील्स है तो वो 20% सेट ऑफ मारती है, 80% कैश पे करती है। एक और स्टील है महिंद्रा स्टील्स, वो भी अराउंड 22-23% सेट ऑफ लेती है आईटीसी, और बाकी 78-79% कैश में पे करती है। तो कोई थोड़ा कम कोई थोड़ा ज्यादा, लेकिन ऑन एन एवरेज अराउंड 20-25% क्रेडिट सेट ऑफ होता है। समझ में आ रहा है? ऑन एन एवरेज ऑल ओवर इंडिया जितने स्टील इंडस्ट्रीज है, ऑन एन एवरेज 20 से 25% के बीच में वो लोग सेट ऑफ लेते हैं आईटीसी से, यानी उतना क्रेडिट उनको मिलता है जो सेट ऑफ होता है, और बाकी अराउंड 75-80% दे पे इन कैश। लेकिन तुम्हारे केस में, तुम भी स्टील इंडस्ट्री हो, वैसे ही हो जैसे दूसरे हैं, सेम रॉ मटेरियल तुम भी यूज करते हो जैसे वो यूज करते हैं, सेम सर्विसेज, सब कुछ सेम, लेकिन तुम्हारा क्रेडिट जो है वो 45% जा रहा है इन कंपैरिजन टू योर आउटपुट लायबिलिटी। तो ऐसा क्या हो गया? स्टील ही तो बना रहे ना, तो सोना तो नहीं खरीद के ला रहे तो तुम्हारा रॉ मटेरियल इतना ज्यादा कैसे आ रहा है, इतना ज्यादा क्रेडिट कैसे मिल रहा है तुमको? तो समझ में आएगा ना कि तुम नॉर्मल लिमिट्स में नहीं ले रहे, तुम एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रेडिट्स ले रहे, यानी कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो ऑडिट करवाएंगे कि ये नकली बिल्स तो नहीं है कहीं। हालांकि हमने पहले भी देखा है इनवॉइसेस के चैप्टर में, रिटर्न्स के चैप्टर में मैंने आपको समझाया है कि नकली बिल का कैसे उन्होंने रोका है। इसके अंदर जीएसटी के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस बना के तो रखे, बट स्टिल पीपल आर इंजीनियस, है ना, लोग बहुत अक्लमंद होते हैं, कुछ ना कुछ तरीका जरूर निकाल लेंगे टैक्स अवॉइडेंस का। तो ये फिर एक और तरीका है रोकने का, ऑडिट करवाओ। तो नॉट विद इन द नॉर्मल लिमिट्स, ही मे with the prior approval of the commissioner, technical point, prior approval of commissioner लेना पड़ेगा पहले, direct such taxable person by a communication in writing to get his records including books of accounts examined and audited by a chartered accountant or a cost accountant nominated by the commissioner। आए समझे? फिर टाइम पीरियड, तो जो सीए अपॉइंट होगा या कॉस्ट अकाउंटेंट shall within a period of 90 days, underline 90 days, submit a report of such audit duly signed and certified by him to the said assistant commissioner, mentioning therein such other particulars as may be specified। assistant commissioner और जो चीजें उसको बोलेगा तो वो सब उसको
सर्टिफाई करके देने का है. Provided that the assistant commissioner may, on the application made to him in this behalf by the registered person or the chartered accountant or the cost accountant, or for any material and sufficient reason, extend the said period by a further period of 90 days. यानी ओरिजिनल पीरियड 90 डेज का मिलेगा and it can be extended by further 90 days. तो असेसी भी जाके अप्लाई कर सकता है रजिस्टर्ड पर्सन या सीए यानी कॉस्ट अकाउंटेंट जो है, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम जा रहा है, दे आर अनेबल टू कंप्लीट द ऑडिट, सो दे विल गो फॉर द एक्सटेंशन ऑफ टाइम. सिंपल पॉइंट्स. और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिए हैं कि प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 शैल हैव इफेक्ट notwithstanding that the accounts of the person have been audited under any other provision of this act. आपके अगर अकाउंट्स दूसरे लॉ में ऑडिट हो चुके हैं या ये एक्ट में भी हो चुके हैं, वो टर्नओवर बेस्ड ऑडिट, तो भी ये स्पेशल ऑडिट कॉल करवाया जा सकता है. इसको नॉटविथस्टैंडिंग इफेक्ट होता है. Then the registered person shall be given opportunity of being heard, obviously, in respect of any material gathered on the basis of special audit, which is proposed to be used in any proceeding under the act or the rules made thereunder. इन ऑडिट रिपोर्ट से जो बातें निकल के आएगी, उसको अगर यूज करना है एसएससी के अगेंस्ट, तो उसको पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा. देन द एक्सपेंसेस ऑफ एग्जामिनेशन एंड ऑडिट, खर्चे कौन उठाएगा और मेनली के सीए की फीस कौन देगा. तो वहां लिखा है कि एक्सपेंसेस ऑफ एग्जामिनेशन एंड ऑडिट ऑफ रिकॉर्ड्स including the remuneration of the chartered or the cost accountant shall be determined and paid by the commissioner. कमिश्नर ही डिटरमिन करेगा कितना इसको पैसे देना है और कमिश्नर ही पे करेगा, यानी कि डिपार्टमेंट पे करेगा इन शॉर्ट. एंड सच डिटर्मिनेशन शैल बी फाइनल. सीए जाके केस नहीं कर सकता कमिश्नर के अगेंस्ट के मेरे को चिल्लर अमाउंट क्यों दिया. जो कमिश्नर बोलेगा वो फाइनल होगा. And where the special audit conducted results in detection of tax not paid, or short paid, or erroneously refunded, or input tax credit wrongly availed or utilized, the proper officer may initiate action under section 73 or 74. Recovery. तो रिकवरी प्रोसीडिंग्स जो है वो 73, 74 में फिर आगे चलेंगे. तो ऑडिट अपने आप में कोई रिकवरी नहीं है, याद रखो. रिकवरी जो है वो 73, 74 में की जाएगी. तो ऐसे है ये दो सेक्शंस, बहुत सिंपल है, छोटा सा चैप्टर, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स.